improve, repeat. The more you practice, the more you will improve, and repeat this, you will definitely get success. Hello dear students, I am Khushbu Kumari from Department of Electrical Engineering. I heartily welcome you on the platform of Techno Herald Online, which is a group member of Techno Herald institutions. Techno Herald institutions have been serving you for many different competitive exams like GATE, ESE, PSUs since last 8 years, and have produced a number of All India rank air students. So the subject I am going to start is Mathematics 3 for civil and mechanical streams. Every concept will be dealt in a vast manner, in a very elaborated manner. Everything I will explain with wherever required. I will explain the things with use of graphs. A number of numericals we will be solving here, so that your concept will be clear. In starting, the course will be streaming on YouTube. You can enjoy the course on YouTube in starting. I will suggest, I will expect suggestions from you to improve more and more, so that the practice, improve and repeat cycle should be maintained. Okay, so joining our course will be definitely beneficial for you. So come with us. In the initial phase you can enjoy the videos or on YouTube streaming. After that you can come to our online app or website to register for the full course. So let me briefly discuss about the subject I am going to take. The subject I am going to take is Mathematics 3. Mainly we are studying here for civil and mechanical branches, because currently the third semester is going on. So Mathematics 3 is for civil and mechanical streams. The topics we are going to study is probability and statistics, and the partial differential equations. Partial differential equations is only for mechanical engineering branch, and this is for both civil and mechanical. So I will be dealing this subject in a very elaborated manner. More and more number of numerical problems we will deal. So I heartily suggest you to join our full course, and you will be definitely get benefited. So thank you. So the topic today we are going to start is probability. ये probability आपके मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स का थर्ड सेमेस्टर का है, और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है. ठीक है. और मेरा एक सजेशन रहेगा कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखाऊं, आप लोग कहीं पे भी नोट करते रहें. ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएंगी, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क क्वेश्चंस आते हैं उसमें काम आएंगे. ठीक है. तो इससे पहले कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन दें, हम लोग प्रोबेबिलिटी के से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस पढ़ेंगे. ठीक है. और ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे बोर्ड पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस, व्हाट इज एन इवेंट. ये आपके एग्जाम्स में 2 मार्क क्वेश्चन में आते हैं. ठीक है. तो जो भी डेफिनेशंस हैं ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखें. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो वी विल स्टार्ट विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई भी ऐसा काम जिसका आउटकम सर्टेन नहीं होता है. सर्टेन मीन्स कि आप पहले से नहीं बता सकते कि क्या रिजल्ट आने वाला है. जैसे कि आप कोई कॉइन को थ्रो करते हैं. ठीक है, कॉइन को टॉस करते हैं, तो आपको पहले से पता नहीं होगा कि हेड आएगा कि टेल आएगा. आप कितना भी बार कॉइन को टॉस कर लो, क्या होता है, हर बार आप अनसर्टेन आउटकम आता है. हर बार ये लगता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, हमें नहीं पता होता है. तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जिनके आउटकम हमेशा अनसर्टेन होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. यानी कि एन एक्सपेरिमेंट whose outcome is uncertain. ठीक है. एज एन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग कोई डाई को थ्रो करते हैं, तो क्या डाई को थ्रो करते हैं, या तो 1 आएगा, 1 to 6 में कोई भी नंबर आता है. ठीक है.
तो ये हमें पहले से पता है कि 1 to 6 में कोई भी नंबर आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्या आएगा। हाँ, शकुनी मामा का डाइस हो तो अलग बात है, वो बायस्ड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अनबायस्ड डाइस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे थ्रोइंग अ डाई, क्या हो सकते हैं इसके आउटकम्स? हमेशा रैंडम रहेंगे 1 to 6 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके आउटकम रैंडम होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है हमारा? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ऐसा सबसेट होता है जिसमें किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स आते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस इज अ सेट, इसको हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, कैपिटल एस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या कहा हमने कि ऐसा स्पेस होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स कंटेन्ड होंगे, ठीक है। यानी कि a set containing all the possible outcomes, ठीक है, all the possible outcomes of a random experiment। दो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक चीज ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, सारे के सारे आउटकम्स जो कि आ सकते हैं। दूसरी चीज एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम है। यानी कि सैंपल स्पेस हम ऐसी चीजों के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं जिनके आउटकम रैंडम है, और उन रैंडम आउटकम्स सारे के सारे कंटेन हो रहे हैं हमारे सैंपल स्पेस में, ठीक है। जैसे कि एज एन एग्जांपल देखिए, आप मानिए कि कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो क्या होगा? हेड और टेल दोनों पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। अब आप कहेंगे हवा में रह गया, हवा में नहीं रह जाएगा ना, आएगा कुछ, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा? टॉसिंग अ कॉइन। क्या कहा हमने? सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एस से, और इसको हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? टॉसिंग अ कॉइन, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे थ्रोइंग अ डाई है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये क्या होंगे? हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है इवेंट, ठीक है। अभी हम लोगों ने बोला था रैंडम इवेंट, ठीक है, उसके बाद बोला था ऑल द पॉसिबल इवेंट्स। अब इवेंट ही क्या है, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है? एवरी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। हमने यहाँ पहले से लिख रखा है क्या? एवरी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। अब एवरी सबसेट, यहाँ पे क्या यूज करें हम लोग टर्म? सेट नहीं, दिस इज अ सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? बेसिकली हम लोग पहले से जानते हैं किसी सेट के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि किसी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके कुछ एलिमेंट्स को लेके हमने एक अलग सेट बना दिया, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा उस सेट का सबसेट है, ठीक है। जैसे कि आप एज एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि फिर से हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे टॉसिंग अ कॉइन लेते हैं। क्या सैंपल स्पेस था इसका? एस से हम लोग क्या डिनोट करें? सैंपल स्पेस को डिनोट करें, तो सैंपल स्पेस क्या था? हेड एंड टेल, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग को सबसेट्स बनाने हो, ठीक है, तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? हम लोग पहले से जानते हैं कि फाई जो होता है, ठीक है, फाई यानी कि नल सबसेट, नल स्पेस हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है। तो फाई इज ऑलवेज देयर। उसके बाद और क्या हो सकता है? अगर हम लोग हेड को, सिर्फ हेड को लेके एक सबसेट बना दे, तो ये एच भी इस एस का एक एलिमेंट है, तो इसको हम लोग एक सबसेट कह सकते हैं। दूसरा चीज टेल, ठीक है, ये टेल भी हमारे एस का
एक इवेंट है तो ये भी एक सबसेट है, और कोई भी सेट अपने सबसेट का मतलब अपने इवेंट्स का एक सबसेट होता है। हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है, यानी कि ये जो हमारा सेट है ये भी खुद का एक सबसेट है। ठीक है, तो ये मेरे कितने सबसेट्स बन गए इसके 5। तो इसमें से जो ये चारों हैं, ठीक है, ये जो सारे हमारे केसेस आ गए 4 अलग अलग, ये क्या है, ये हमारे इवेंट्स हैं, यानी कि टॉसिंग अ कॉइन के 4 इवेंट्स हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये चारों सबसेट को इवेंट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे। एक चीज, हाँ, अभी अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे 2 मार्क के क्वेश्चंस में आता है डेफिनेशंस लिखने को, तो जैसे उसमें पूछ देगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मॉडिफिकेशन करना कुछ कंपलसरी नहीं है, सेम यही चीज होता है। आप पहले समझ लो, आप खुद से भी लिख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है, कि एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ए सेट ऑफ इवेंट्स which includes all the possible events। ठीक है, all the possible events। एग्जॉस्टिव हम लोग जनरल टर्म्स में भी देखते हैं कि अरे एग्जॉस्ट हो गए, यानी कि थक गए। थक गए मतलब कि ऐसे लगता है सब कुछ कर लिया है, अब थक गए हैं। वैसे ही थोड़ा सिमिलरली ले सकते हैं एग्जॉस्टिव को कि इसमें सब कुछ आ गया है। ठीक है, सब कुछ आ गया है, तो अब ये सेट एग्जॉस्ट कर गया है, इसमें और कुछ कंटेंट नहीं हो सकता। जैसे कि हमने इस इवेंट का टॉसिंग अ कॉइन का सबसेट्स देखा। ठीक है, तो इसमें क्या था, सब कुछ कर लिया हमने, 5 को भी इंक्लूड कर दिया, एस को भी इंक्लूड कर दिया, अलग से हेड को भी इंक्लूड कर दिया, टेल को भी इंक्लूड कर दिया। तो क्या हुआ, हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। अब देखो, आप बताओ इसमें और कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा एग्जॉस्टिव है, ये मेरे 4 चीजें जो हैं, ये सेट ऑफ इवेंट्स जो हैं, ये मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव टर्म आपने पहले बहुत सुन रखा होगा, ऐसे कहते हैं एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ दिस ब्रांड। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब वहां पे क्या होता है, अकेला। ठीक है, यानी कि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के कहने का मतलब होता है कि इस मार्केट में हम अकेले हैं। ठीक है, हमारे जैसा दूसरा नहीं है। वैसे ही उस सेंस में नॉट एग्जैक्टली सेम, बट सिमिलरली आप ये चीज समझ सकते हो कि एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, एक साथ 2 इवेंट नहीं हो सकते। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल आप देख लो, जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो। ठीक है, जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो क्या होता है, हेड और टेल एक साथ आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि एग्जाम देते हो। ठीक है, तो या तो आप पास हो जाओगे या तो फेल हो जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पास भी हो जाओ फेल भी हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे इवेंट्स मतलब पास होना और फेल होना बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो एक साथ नहीं हो सकती। तो सेम चीज हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो ऐसे इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, लाइक 2 और मोर इवेंट्स which cannot occur या happen, क्या चीज एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि आप
लूडो खेलते हैं तो आप कोई डाई को थ्रो करते हैं तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। कोई दो एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि हमने शोरूम का एग्जांपल लिया, जब वो एक्सक्लूसिव कहते हैं तो उनका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ हम ही हैं, दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, टॉसिंग 2 कॉइन्स। क्या होता है इसमें, जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो कि दोनों पे हेड आ जाएगा, ठीक है, या तो कि एक पे हेड एक पे टेल आ जाएगा, ठीक है, या तो एक पे टेल एक पे हेड आ जाएगा, या फिर दोनों पे भी टेल आ सकता है। अच्छा, अब आप बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, तो एक पे हेड आया और एक पे हेड एक पे टेल एक साथ आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, लेकिन कोई 2 एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आप पास फेल का एग्जाम्पल देख सकते हो, आप अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके होने का प्रोबेबिलिटी बराबर होता है। जैसे आपने अगर कॉइन टॉस किया तो हेड आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने की टेल आने के चांसेस है, ठीक है, बराबर चांसेस, ठीक है। इक्वली का मतलब यहाँ पे होता है बराबर चांसेस, कि अब कोई इवेंट हो रहा है उसमें हर एक सबसेट के होने के बराबर चांसेस हैं। जैसे कि पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, 2 or more events having equal chances of occurrence। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि थ्रोइंग अ डाई का ले लेते हैं। क्या होता है, हर एक इवेंट आने के चांसेस बराबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी के आने के चांसेस क्या हैं, बराबर हैं। ऑल कैन क्या है, ऑल आउटकम्स आर इक्वली पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा सा लाइक हैंड राइटिंग खराब हो गया, थोड़ा मैनेज कर लिया, मैं बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल आउटकम्स आर इक्वली पॉसिबल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ये जो लंबे डेफिनेशन है वो हम पहले से लिख के रख दे रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको डिलीवर कर पाएँ, ठीक है। तो जैसे अगला चीज़ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है ए सेट ऑफ ऑल दोज इवेंट्स विच आर नॉट इन ए, ऐसे इवेंट्स जो ए में नहीं है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि अ डाई इज थ्रोन। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए कोई इवेंट है, ठीक है। लेट ए is an event of
अकरेंस ऑफ, ठीक है, अकरेंस ऑफ लेट्स से इवन नंबर्स, ठीक है, अकरेंस ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का अकरेंस मतलब क्या है कि जब आप डाई को थ्रो करते हो तो क्या क्या इवन नंबर आ सकते हैं, 1 फ्रॉम 1 to 6, 2, 4, 6 आर इवन नंबर्स। तो हम अभी यहाँ पे क्या बात करेंगे, पर ए क्या है मेरा, इसका मतलब क्या है, ए यानी कि ए एक सेट है जिसमें 2, 4 या 6 आएंगे। अब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है पता करेंगे, ठीक है। पहले एक चीज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बार, या फिर आप ए डैश भी यूज करते हैं, या फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इन चीजों से हम लोग ए के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा इवेंट ए है तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या डिनोट करेंगे हम लोग, ए बार, ठीक है। ए बार क्या है, ए में मेरे सारे क्या आ गए, इवन नंबर्स आ गए, तो अब क्या बचे, मेरे ऑड नंबर्स बचे, ठीक है। तो ए यानी कि एक्सक्लूड करेगा, एक्सक्लूडिंग द इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। तो आप क्या करो, 1 to 6 में से सारे के सारे इवन नंबर्स को एक्सक्लूड कर दो, क्या बचा, 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, क्या बचा हमारे हाथ में, 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है 1, 3 एंड 5 है, ठीक है। यानी कि ये हमारे ए बार, या आप इसको क्या कह सकते हो, ए डैश, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब हमने मोस्टली सारे बेसिक टर्म्स कवर कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है तो हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है। अब देखते हैं कि ये सब को रिलेट करके हम प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन कैसे देते हैं, ठीक है। तो इफ देयर आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि हमारा इवेंट सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, यानी कि 2 एक बार में नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्टिव होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे इवेंट्स कंटेन होने चाहिए, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं सारे हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद हर एक इवेंट के होने के चांसेस इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हैं और कोई इवेंट m है और उसके अकरेंस के नंबर ऑफ केसेस m है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ a को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमने क्या लिया था, देखिए लिखा हुआ है m इवेंट्स आर फेवरेबल टू a, यानी कि a के फेवरेबल केसेस कितने हैं, m है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने कितने लिए हैं, n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो यानी कि n, ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपके एग्जाम में पूरे चांसेस रहते हैं, ऐसे आता है कि व्हाट इज डिफाइन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप इसको एग्जैक्टली अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, याद करके या समझ के, ठीक है। ये हो गया। और हाँ, प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, P से, कैपिटल P, दिस इज स्मॉल ब्रैकेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट A इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोबेबिलिटी, दैट फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं आएगा। फाई का मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो हमेशा ये फाई का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, यानी कि कुछ ना कुछ आउटकम आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से हम लोग क्या बोल रहे थे, एस को हम लोग क्या कहा था हमने, सैंपल स्पेस, ठीक है। और सैंपल स्पेस क्या था, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को कंटेन कर रहा था, यानी तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए तो प्रोबेबिलिटी मेरा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि इफ देयर इज एन इवेंट विच इज श्योर, ठीक है, P ऑफ S का मतलब होता है श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट मतलब कि जो श्योर है, हमें पता है कि यही आना है, ठीक है। तो क्या है, सैंपल स्पेस में क्या है, श्योर इवेंट मतलब क्या है कि हमें पता है, जैसे कॉइन टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हमें पता है, तो हेड या टेल आना तो श्योर इवेंट है। यानी कि सैंपल स्पेस क्या, सारे के सारे इवेंट्स को अगर कंटेन कर दिया जाए एक जगह तो क्या होगा, वो श्योर इवेंट होता है, और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद तीसरा चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, ये, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, कुछ इस तरीके से कि किसी इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा 0 से 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये चीज कि किसी इवेंट ए के प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, ठीक है। इससे हम लोग ऐसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है ये, बहुत यूज करेंगे हम लोग इसको आगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत हेल्प करेंगे आगे, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो 4 चीजें हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन भी पूछा जाए तो आपको जो पैराग्राफ मिला था, जो आपको सेंटेंस मिला था, उसके साथ आप हमेशा ये चीज लिखेंगे और ये 4 चीज लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं कॉपी चेक करूं तो मैं आपको इस चीज के लिए पूरे नंबर दूंगी, ठीक है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स को एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें हमने 6 सब सेक्शंस किए हैं, एक एक करके हम लोग करते हैं, ठीक है। कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब कि 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया है, तो फिर हमें डिफरेंट इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकाल लेंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखो, एक डाई को रोल करने से 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2 डाई को रोल करने से कितने होंगे, 6 गुने 6, 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो अब देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो हम लोग इसका सैंपल स्पेस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हम लोग इसको हमेशा रिटेन करेंगे और अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या फिर यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो सैंपल स्पेस, चलिए, तो क्या होगा सैंपल स्पेस, या तो पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, इस तरीके से आएंगे। सिमिलरली पहले पे 2 1, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक को फिक्स करके दूसरे को वेरी कराते रहिए, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं सारे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
फिर आ जाओ आप 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 ये लिख लिया हमने सैंपल स्पेस। अब हम लोग इसको यूज करके सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ये 6 by 6 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब कि 36 एलिमेंट्स है इसमें। अब आप देखते जाओ क्या क्या हमारे यूज का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या कह रहा है? सम कम्स टू बी 7, ठीक है। तो 7 सम किसी भी डाई में कब आ सकता है, ठीक है। या तो देखिए 1 6 6 1, या फिर आप 2 और 5 को ऐड कर दो, या फिर आप 3 और 4 को ऐड कर दो, ठीक है। यानी कि 3 केसेस बनते हैं। 1 से लेके 12 में कौन कौन से नंबर्स को ऐड करने से 7 आ सकता है। तो आप ऐसे नंबर्स ले सकते हो, 1 6 को ऐड करने से आ सकता है, लाइक 1 and 6, या फिर आप ले सकते हो 2 and 5, और या ले सकते हो आप 3 and 4, ठीक है। इसके अलावा और कोई नंबर्स को ऐड करने से 7 नहीं आएगा। कितने नंबर्स हैं ऐसे? तो ये देखो हमारे 1 6, तो 6 1 को ऐड करके भी आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 5, अगर आप 5 2 को ऐड कर दो तो भी 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 4 4 3 को ऐड कर दो तो भी 7 आ जाएगा। यानी कि ऐसे कितने इवेंट्स बन गए मेरे? 6 बन गए। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। और टोटल कितना सैंपल स्पेस है हमारा? कितने इवेंट्स है? टोटल इवेंट्स है हमारे 36। सो द प्रोबेबिलिटी दैट सम टर्न्स अप टू बी 7 इज इक्वल टू 6 by 36, which is ultimately equal to 1 by 6, ठीक है। तो जब भी आपको 2 डाइस को रोल करने का केस मिलता है तो आप ये सैंपल स्पेस कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा आप ये सैंपल स्पेस की मदद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है। दैट सम एक्सीड्स 8। सम एक्सीड्स 8 का मतलब क्या है कि सम जो आएगा वो 8 से ज्यादा आना चाहिए। सम एक्सीड्स 8, इसका क्या मतलब है कि सम इज इक्वल टू 8 से ज्यादा। क्या क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है एंड 12 हो सकता है। 13 तो नहीं हो सकता है ना। मैक्सिमम 6 6 12 तक जा सकता है। तो सम मैक्सिमम कितना आ सकता है? 12। तो हम लोग 9 10 11 12 कितने बार ऐसे सम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 तक ही रुक गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज हमें मिलता है 8, पर हमें 8 नहीं चाहिए, हमें सम एक्सीड्स 8 चाहिए, यानी कि 8 से ज्यादा, ठीक है। तो 2 6 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे मिल गया हमें क्या? 3 6, जो कि बराबर है किसके? 9 के। पहले वाले सर्कल्स को मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। हम नए सर्कल्स बनाएंगे इस बार, ठीक है। अब देखो ये मिल गया मुझे क्या? 9। अब देखो ये मिल गया मुझे 9, ये भी 9 है, ठीक है, ये भी 9 है, बाकी सब इस तरीके के 9 हैं।
यहाँ से आपको एक बहुत कमाल की बात पता चलेगी। इससे पहले हमने क्या देखा था, ये जो एलिमेंट्स थे, यानी ये जो इधर से डायगोनली जो एलिमेंट्स थे, ये सारे का सम 7 आ रहा था। अब आप एक मजेदार बात देखो, ये सारा सम 7 है। अब आप इस तरफ देखो, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स को देखो, कहीं पे भी सम आपको 7 नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे सम क्या है, सम लेस देन 7 है, लेस देन 7 है। और इस तरफ आप चले जाओ, अब आप देख लो, सारे के सारे सम आपको मिलेंगे जो कि ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। ये वाला सम क्या मिला मुझे, ग्रेटर देन 7। पर अब हमें ये डायगोनल के इस तरफ जो मिला वो ग्रेटर देन 7 मिला, इस तरफ जो मिला सॉरी इस तरफ लेस देन 7 मिला, इस तरफ ग्रेटर देन 7 मिला, डायगोनल पे इक्वल टू 7 मिला। हमें क्या चाहिए, 9, 10, 11, 12। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो हमने सर्कल्स बना रखे, देखो ये जो सारे हैं ये 8 है, तो अब बाकी जो बचे वो सारे क्या है, ग्रेटर देन 8 है। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मेरे ख्याल से 10 है, 3 3 6 और 4 10, ठीक है। 10 एलिमेंट्स ऐसे मिल गए। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, सो द प्रोबेबिलिटी दैट सम एक्सीड्स 8 इज इक्वल टू क्या होगा, कितने नंबर ऑफ केसेस हमारे आ गए हैं, 10 आ गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे 36 थे पहले से। ये हो गया हमारा 5/18, ठीक है। चलिए, तीसरा सबसेक्शन हमारा था सम इज अ प्राइम नंबर। तो हम एक काम करेंगे, मैंने ये सैंपल स्पेस को फिर से क्लीनली लिख दिया है तो वो बहुत क्लमजी हो गया था, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं सम्स का, ठीक है। फिर हम लोग ये सारे आउटकम्स को एक साथ कंसिडर कर पाएंगे। तो आप देखो, सम जब आप 2 डाई को थ्रो करते हैं तो सम क्या आ सकता है, मिनिमम सम क्या आ सकता है, मिनिमम क्या होगा, दोनों पे 1 1 आ जाए तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद मैक्सिमम कितना आ सकता है, 12 आ सकता है, यानी दोनों पे 6 6 आ जाए तो 2 से 12, ठीक है। तो यानी कि हमारा रेंज क्या रहेगा सम्स का, 2 डाई को रोल करने पे 2 से लेके 12 के बीच में, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, डॉट 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 12 तक आ सकता है, ठीक है। तो हम एक टेबल एक जगह बना लेते हैं, उससे हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक जगह लिखते हैं सम और लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स ले लो, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स। मिनिमम सम कितना आ रहा था, 2 3 4 5 ठीक है। 2 कितने बार आ सकता है, सम इज इक्वल टू 2 सिर्फ एक केस में आ सकता है, जबकि दोनों डाई पे 1 and 1 आए, यानी कि ये तो क्लियर है कि एक ही होगा, ठीक है। 12 कब आ सकता है, 12 तब आ सकता है जब दोनों की दोनों डाई पे 6 आ जाए, उसके अलावा कभी 12 नहीं आएगा, यानी कि ये भी फिक्स है कि एक ही होगा, ठीक है। अब चलिए आप आ जाइए 3 पे। 3 कब आ सकता है, 3 सिर्फ 1 और 2 का सम में 3 आ सकता है, ठीक है। तो या तो पहले पे 1 दूसरे पे 2, या फिर पहले पे 2 दूसरे पे 1, यानी कि 2 केसेस ऐसे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, जबकि सम इक्वल टू 3 आ रहा होगा। अब आ जाओ 4 पे। तो 4 कब कब आ सकता है, या तो दोनों डाई पे 2 और 2 आएगा, या फिर 1 पे 1 1 पे 3, या फिर पहले पे 3 दूसरे पे 1, यानी कि ये हो गया हमारा 3 इवेंट्स, ठीक है। अब आ जाओ 4 पे। ओ 4 तो हमने कर लिया, 5 कब आएगा, 5 किसका सम हो सकता है, 2 और 3 का, या 1 और 4 का, यानी कि पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 4 दूसरे पे 1, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया 4, ठीक है। अब 6 को देखो, 6 कब होगा, 4 2 और 3 3 का सम। आप इस तरीके से इसमें से काउंट करके लिख सकते हो
तो ये आ जाता है आपका 5 बार। अब आप 7 आओगे, 7 का हमने पहले निकाला था, ये वाला डायगोनल, ये आया था 6 बार। उसके बाद 8 आप देखोगे, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये आ जाएगा आपका 5 बार। इस तरीके से 9 आ जाएगा आपका 4 बार, 10 आ जाएगा आपका 3 बार और ये 2 बार। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ से जाओ 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर से चले जाओ वापस 5 4 3 2 1। आप आराम से याद रख सकते हो, आपको सैम्पल स्पेस नहीं भी लिखे तो आपको अगर ये टेबल याद है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या है 1 2 3 4 5 6 और 6 से फिर रिवर्स काउंटिंग। तो चलिए अब हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या है, तीसरा प्रॉब्लम था सम इज अ प्राइम नंबर। तो आप बताओ 2 से लेके 12 सम आ रहे हैं, 2 से लेके 12 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो आपका प्राइम नंबर क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, फिर 7 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 8 9 है क्या, नहीं, 9 3 से भी डिविजिबल है तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। आप आ जाओ 11 भी प्राइम नंबर है। यानी कि आपको क्या क्या प्राइम नंबर्स है, हम सॉल्व कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तो प्राइम नंबर्स हमारे जो कंसिडरेबल हैं वो हैं या तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 2 3 5 7 और 11 कितने हो गए हमारे, 5 प्राइम नंबर्स हो गए। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ सम इज अ प्राइम नंबर कितने हैं हमारे, 2 3 4 5 7, ये हमारे प्राइम नंबर है। अब पर हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए कि सम इज इक्वल टू प्राइम नंबर कितने बार आया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है। ठीक है, तो नंबर ऐड करो, 2 कितने बार आ सकता है, 2 का क्या है मेरा 1 ही है। ठीक है, यानी कि 1 आ गया मेरा 2 के लिए, 2 एक बार आ सकता है। उसके बाद आ जाओ 3 कितने बार, 2। उसके बाद आप आ जाओ 5 का कितने बार सम आ सकता है, 4 बार। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ 7, तो 7 का सम कितने बार आ सकता है, 7 का आएगा हमारा 6 बार। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ सीधा 11 पे, 11 कितने बार आएगा, 2 बार। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। हाँ, हमने इसको ऐड करके नहीं देखा ना, ये टोटल 36 आ रहा है कि नहीं, ये देखो 3 6 4 10 5 15 6 21 5 26 4 30 और ये 6 36, टोटल 36 आ गए थे। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज अ प्राइम नंबर। ये इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 1 3 4 7 6 13 2 15 बटा 36। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 बटा 12। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बिट। नेक्स्ट बिट क्या है, सम टर्न्स टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप बताओ 2 से लेके 12 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं हमारे या तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगे, 4 आने के चांसेस कितने बार है, 3 बार, और 9 आने के कितने बार है, 4 बार। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगे हमारे, इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 9। तो 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा मेरा, 3 बार 4 आ सकता है, मतलब 3 केसेस में 4 आ सकता है, तो 3 बटा 36 और प्लस 9 का क्या है 4, तो क्या आएगा ये 4 बटा 36। ये मेरा टोटल हो गया कितना 7/36। ठीक है,
नेक्स्ट बिट मेरा है इक्वल एंड अनइक्वल आउटकम्स। तो आप देखो फिर 5वां बिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल आउटकम्स। इसके लिए तो हमें सैंपल स्पेस की भी जरूरत नहीं है। इक्वल आउटकम्स मतलब क्या, दोनों ही डाई पे बराबर वैल्यू आना चाहिए। क्या क्या हो सकता है, या तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यही 6 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो क्या होगा मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो गया मेरा, 6 हो गया, और टोटल केसेस कितना है मेरा 36। तो ये हो गया मेरा 1/6। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा चीज क्या पूछा है, अनइक्वल आउटकम्स। तो जो इक्वल नहीं है वो अनइक्वल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनइक्वल आउटकम्स इज इक्वल टू, जो इक्वल नहीं है तो ये 6 को छोड़ के बाकी और भी कोई इक्वल नहीं होंगे। यानी कितने बचे मेरे 36 - 6। ठीक है, तो कितने बचे मेरे 30 / 36, ये हो गया मेरा 5/6। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो हमने कॉम्प्लीमेंट रूल लिया था, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अनइक्वल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल आउटकम्स, कॉम्प्लीमेंट रूल से। क्या होगा ये, तो 1 - इक्वल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी कितना था मेरा, 1/6 आया था। तो 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। ये हो गया मेरा 5वां बिट भी कंप्लीट। ठीक है, अब है 6ठा बिट, आउटकम ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन आउटकम ऑन सेकेंड डाई। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। आइए देखते हैं 6ठा बिट क्या है, आउटकम ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आउटकम ऑन सेकेंड डाई। यानी कि पहले डाई पे जो भी नंबर आए वो हमेशा मेरे सेकेंड डाई से ज़्यादा होना चाहिए। इस चीज़ का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले आउटकम पे क्या क्या आ सकता है, चलिए हम लोग सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, और हमेशा क्या करेंगे, पहले वाले पे उससे ज़्यादा ले लेंगे। तो मान लो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड डाई, और यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट डाई। सेकेंड डाई पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए कि ये हमेशा इससे ज़्यादा रहे। तो पहला डाई पे 1 से ज़्यादा क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है जो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या क्या है, या तो 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर में से कोई भी एक आ जाए तो ये मेरा दे देगा कि पहला डाई पे जो नंबर आया है वो दूसरे डाई पे आए हुए 1 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि दूसरे डाई पे मेरा आ चुका है 2, तो फिर पहले डाई पे क्या क्या आएगा जो 2 से ज़्यादा होगा। तो 2 से ज़्यादा क्या होगा मेरा, 3 4 5 या फिर 6। सिमिलरली आप 3 के लिए देखो, तो मान लो कि 3 पे दूसरे डाई पे अगर 3 आ चुका है तो पहले डाई पे क्या आ सकता है जो 3 से ज़्यादा होगा। तो क्या होगा मेरा 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 के लिए, 4 के लिए क्या क्या आ सकता है, तो 4 से बड़ा क्या क्या होता है, 5 और 6। उसके बाद आ जाओ 6, है ना, अरे सॉरी 5 के लिए देखो, 5 से बड़ा क्या 6। अब अगर दूसरे डाई पे आ गया है 6 तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है, यानी कि 6 दूसरे डाई पे हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 6 से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे कितने केस बन गए मेरे, ये देखो 5 1 4 1 3 1 2 1, है ना, ओ 6 1 रह गया था, 6 1 भी हो सकता है। इस तरह देखो यहाँ पे मेरे बनेंगे कितने, 3 2 4 2 5 2 6 2, 4 केसेस बनेंगे। मैं लिख देती हूँ, इसी तरीके से 4
3, 5 3 और 6 3। इसमें होगा मेरा 6 4 और 5 4 और इसमें होगा मेरा 6 और 5। आप ये चीज आपको जो मैंने सैंपल स्पेस दिया था, आप सैंपल स्पेस पे जाके पॉज करना, वहां से भी आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे लॉजिकली सोच सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सैंपल स्पेस से रेफर करके ये नंबर्स को चुन सकते हो कि कौन से नंबर्स में मेरा पहला डाई पे जो आउटकम आया है वो दूसरे डाई से ज्यादा है। ठीक है, तो कितने नंबर्स आ गए मेरे? 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ये मेरे हो गए टोटल 15 आउटकम्स। दीज आर माई 15 आउटकम्स। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देन प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम ऑन फर्स्ट डाई is greater than outcome on second is equal to, मेरे कितने फेवरेबल केसेस आए थे? 15 और बटा टोटल कितने पॉसिबल है? 36। ये हो गया मेरा 5/12। ठीक है, ये हो गया मेरा 5/12। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं अब हम लोग देखेंगे अगला एग्जाम्पल। ठीक है।